थोड़ा आराम से, थोड़ा आराम से। ऊपर गली पर surprises for the beautiful audience present here. A very warm welcome to respected MD Sir, Mr. Ramesh Pathania, distinguished chief guests, esteemed PTA President, Mr. Tikam Ram Rana, Vice President, Mr. Gopal Singh Negi, Chief Advisor, Mr. Fateh Singh Thakur, adorable parents of our talented children, benevolent teachers and dear students. At last, after eager waiting and tireless efforts, this preparation for auspicious day has arrived to an end. Before going any further, I am delighted to thank the presence of our chief guests who are the parents of our plus 2 and 10th toppers. We have with us 10th class topper Gunshika Negi and her parents Mr. Harish Chandra and Mrs. Shakuntala as chief guests. She obtained 679 marks out of 700. So give a huge round of applause for Gunshika and her parents. I welcome you on behalf of the Evergreen staff. Next we have our topper Dhaminder and his parents Mr. Geru Ram and Mrs. Dari Devi as chief guests. He has obtained 466 marks out of 500. So put your hands together for Dhaminder and his parents. Now next we have Mahinder Singh, class plus 2 science stream, and his parents Mr. Trilok Singh and Mrs. Kheli Devi as chief guests. He has obtained 484 marks out of 500. And he has got 9th position in HP and 1st position in district Kullu. Now have a great round of applause for Mahinder Singh and his parents. We are really proud of you. These toppers are the jewels of our school. They have given their parents honor and opportunity to grace this occasion. We are truly delighted and honored to have you with us on this special occasion. We are extremely hopeful that you had an entertaining day with us. Besides, I would also thank the respected parents of our hard-working and talented students for their presence. Today is a day of celebration, a day to acknowledge of hard work and dedication of students, teachers and staff. This year has been an exceptional one for our school and we have achieved many milestones together. We have accomplished so much
and made our school proud. So once again, I welcome you all to this wonderful annual day function. We have with us guest of honors, Mr. Sher Singh, Assistant Commandant ITBP. I welcome you, sir, on this precious day. Now I would like to call up on the stage Mr. Ashutosh Sharma for Saraswati Vandana and lamp lighting. Thank you everyone. Have a wonderful day. नमोदेव्यै महादेव्यै शिवाय सत्वं नमः नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्रणतास्मतां नमः शिवाय नमः सभाय। सभागार में उपस्थित परम आदरणीय श्री रमेश पठानिया प्रधानाचार्य जी, उनके समकक्ष बैठे आज के अतिथिजन और हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रधान श्री टिकम राम राणा जी, उप प्रधान श्री गोपाल सिंह नेगी जी, मुख्य सलाहकार श्री फतेह सिंह ठाकुर जी और छात्रों संग आए हुए भिन्न भिन्न स्थानों से अभिभावक जन और ग्राम पंचायत का से पधारे प्रधान श्रीमती शीला पठानिया जी, हमारे ITBP के कमांडर श्री शेर सिंह जी और अन्य जितने भी अतिथिजन पधारे हुए हैं हमारे इस वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में, उन सब का मैं हृदय से बार बार अभिनंदन अभिवादन हार्दिक स्वागत करता हूं इस बार के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में। आज हम अपने 17वें वार्षिक उत्सव को मनाने के लिए यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। आज से 17 वर्ष पूर्व इस विद्यालय को एक पौधे की तरह रोपा गया था, जो कि आज एक विशाल वृक्ष बनकर उभरा है। यहाँ से हजारों छात्रों ने शिक्षा ग्रहण करके आज समाज के अनेक पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस तरक्की के पीछे कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन, हमारे विद्यालय के अनुभवी शिक्षकगण और आदर्श छात्रों तथा उनके अभिभावकों का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी यहाँ छात्रों का समर्पण भाव देखा जाता है, जिससे उनकी सर्वांगीण विकास की भूमिका भी पूर्ण हो जाती है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा मिलती है। तो चलिए, जैसे महोदया जी ने बता दिया कि हमारे मुख्य अतिथिजन जो होते हैं, यह सौभाग्य हमारे विद्यालय के जो मेधावी छात्र 10वीं और 12वीं कक्षा में जो प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, उन छात्रों और उनके माता पिता को यह सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इस बार यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे विज्ञान संकाय से महेंद्र, जिन्होंने ना कि हमारे विद्यालय, अपने क्षेत्र, अपने ज़िला, बल्कि पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। पूरे प्रदेश में 9वां स्थान और अपने ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त करके बहुत बड़ी एक उपलब्धि हासिल की है। तो आज के पहले मुख्य अतिथि हमारे महेंद्र जी और उनके माता पिता श्रीमान त्रिलोक सिंह और श्रीमती खेली देवी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और हमारे आज के दूसरे मुख्य अतिथिजन हैं दूर दराज क्षेत्र के निवासी और माँ भागासित के पड़ोसी धर्मेंद्र जी और उनके माता पिता श्रीमान गेहरू राम जी और श्रीमती देहरी देवी जी। और तृतीय 10वीं कक्षा से हमारी होनहार प्रतिभावान
गुणों से भरपूर नाम जिसका है गुण शिखा, उन्होंने अपने माता पिता को ये सौभाग्य इस वर्ष प्रदान किया है। गुण शिखा संघ उनके अभिभावक श्रीमान हरिश्चंद्र और श्रीमती शकुंतला देवी जी, इन सबका इस वर्ष के 17वें वार्षिक उत्सव में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन है। तो चलिए अधिक वक्तव्य को न करते हुए जो हमारा समारोह होता है उसकी शान सरस्वती वंदना और माँ का आशीर्वाद लेने बगैर पूर्ण नहीं। इसी परंपरा को निभाते हुए मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री रमेश पठानिया जी और जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारी हुई है, अभी गुणशिखा दिख रही है, कृपया मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन के साथ भगवती माँ शारदा सरस्वती का आशीर्वाद ग्रहण करें। और जितने भी अभिभावक जन आए हुए हैं, कृपया वह भी कुछ 4-5 मिनट के लिए अपनी जगह पर शांति पूर्वक खड़े होंगे। माँ सरस्वती के सम्मान हेतु कृपया शांति पूर्वक स्व जगह पर खड़े हो जाएं। छोटे बच्चे बेशक नीचे बैठ सकते हैं, जो अपने विद्यालय के बच्चे हैं। ओम दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतो मे पापम, दीपं करोतु शुभं कल्याणं, दीप ज्योतिर्नमस्तुते, दीप ज्योतिर्नमस्तुते। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे, सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। ओम अधरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरं, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं बलितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं। वेणुरमधुरो रेणुरमधुरः, पाणिरमधुरः पादौ मधुरौ, नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भुक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं।
मधुराधिपते अखिलम मधुरम। धन्यवाद। कृपया स्व अपनी जगह पर विराजमान हो जाएं शांतिपूर्वक। तो जैसा कि हमारे वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों में वर्णित है, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देव स्वरूप होते हैं। जब तक उनका आदर सत्कार पूर्ण ना हो तब तक भी किसी कार्यक्रम की शान नहीं होती। तो इसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए मैं पुनः प्रधानाचार्य श्री रमेश पठाना जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि जो भी हमारे मुख्य अतिथिजन अभी पधारे हुए हैं उनको टोपी, स्मृति चिन्ह, मफलर इत्यादि देकर सम्मानित करें। मैं क्रमशः नाम लेता जाऊंगा। मुख्य अतिथिजन कृपया उसके अनुसार मंच पर आएं और हमारे सम्मान से सुसज्जित हो जाएं। महेंद्र सिंह और उनके माता पिता श्री त्रिलोक सिंह और श्रीमती खेली देवी जी, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें सभी अभिभावकजन। उसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर धर्मेंद्र और उनके माता पिता श्री गेहरूराम जी और श्रीमती देहरी देवी जी, कृपया मंच पर आएं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। हमारे दूरदराज क्षेत्र पीढ़ी से पधारे हुए हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। उसके बाद हमारी होनहार प्रतिभावान गुण शिखा व उनके संगाए हुए अभिभावक जन श्रीमान हरिश्चंद्र और श्रीमती शकुंतला देवी जी मंच पर आए और सम्मान से सुसज्जित जाए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। उसके बाद मैं अपने विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रधान, उप प्रधान और मुख्य सलाहकार श्री टिकम राम राणा जी, श्री गोपाल सिंह नेगी जी और श्री फतेह सिंह ठाकुर जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया मंच पर आए और सम्मान से सुसज्जित होकर हमें आशीर्वाद दें। जोरदार तालियों से स्वागत। वीडियो बनाई गोरी गच कर दी, वीडियो बनाई गोरी गच कर दी। उसके बाद
हमारे आज विशेष अतिथि के रूप में पधारे हुए कनावर वैली विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री चंद्र कुमार जी कृपया मंच पर आएं और हमें सुसज्जित करें अपने आशीर्वाद दे करके। श्री चंद्र कुमार कनावर वैली विद्यालय के प्रधानाचार्य, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। बहुत दुर्गम क्षेत्र पर ये विद्यालय भी है, बरसैनी नामक स्थान पर। तत्पश्चात हमारे जो ग्राम पंचायत का इसके प्रधान पद पर जो चुने गए उम्मीदवार हैं श्रीमती शीला पठानिया जी भी मंच पर आए और सुसज्जित होकर हमें आशीर्वाद दें। कृपया मंच पर आए श्रीमती शीला पठानिया जी। जोरदार तालियों से ग्राम पंचायत का इसके प्रधान पद पर अभी नियुक्त सेवाएं दे रहे हैं। उसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं जो अभी असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में नियुक्त है श्री शेर सिंह जी भी कृपया मंच पर आएं और हमारे सम्मान रूपी सम्मान को ग्रहण करें। श्री शेर सिंह जी, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। बहुत बड़े पद पर हमारी जो इंडियन आर्मी के रूप में और देश की रक्षा में तत्पर रहते हैं, ऐसे होनहार व्यक्तित्व का हमें जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए। श्री शेर सिंह जी। उसके बाद अंतिम हमारे जो विद्यालय प्रबंधन के अध्यक्ष ही बोल सकता हूँ मैं, हमारे विद्यालय में बहुत उनका रहता है, श्री हेम सिंह जी कृपया मंच पर आएं और सम्मानित होकर के हमें सुसज्जित करें। श्री हेम सिंह जी मंच पर आएं, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। विद्यालय प्रबंधन में जो देख रेख में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। हेम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like ITBP, Mr. Sher Singh Thakur ji, PTA President Mr. Tikam Ram Rana ji, Vice President Mr. Gopal Singh Negi ji, Chief Advisor of this court Mr. Fateh Singh Thakur ji, चारों दिशाओं से आए अभिभावकगण, नारी शक्ति, अध्यापक वर्ग व प्यारे बच्चों, 17वें वार्षिक वितरण समारोह में आने पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। एवरग्रीन स्कूल को इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए सभी माता पिता ने अपने विश्वास का योगदान दिया है और सभी छात्रों और अध्यापकों ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर स्कूल को क्षेत्र के उत्कृष्ट संस्थानों में शामिल किया है। इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। डियर पेरेंट्स, अब मैं ज़्यादा समय न लेते गुड मॉर्निंग। एवरग्रीन स्कूल के 17वें वार्षिक वितरण समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि
+2 विज्ञान संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र महेंद्र सिंह के माता पिता माननीय श्रीमती खेली देवी एवं श्री त्रिलोक सिंह जी। +2 कला संकाय से स्कूल में प्रथम और हिमाचल में 21वां स्थान प्राप्त करने वाले छात्र दमिंदर के पिताजी माननीय श्री गेरूराम जी। 10वीं कक्षा में पूरे प्रदेश में 16वां और स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा गुणशिखा के माताजी श्रीमती शकुंतला देवी। विशिष्ट अतिथि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल काई से प्रधानाचार्य श्रीमती कल्पना शर्मा जी। कनौर वैली पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य श्री चंद्र प्रकाश जी। ग्राम पंचायत काइस की प्रधान श्रीमती शीला पठानिया जी। डिप्टी कमांडेंट ITBP मिस्टर शेर सिंह ठाकुर जी। PTA प्रेसिडेंट मिस्टर टिकमराम राणा जी। वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर गोपाल सिंह नेगी जी। चीफ एडवाइज़र ऑफ दिस स्कूल मिस्टर फतेह सिंह ठाकुर जी। चारों दिशाओं से आए अभिभावकगण, नारी शक्ति, अध्यापक वर्ग व प्यारे बच्चों, 17वें वार्षिक वितरण समारोह में आने पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। एवरग्रीन स्कूल को इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए सभी माता पिता ने अपने विश्वास का योगदान दिया है और सभी छात्रों और अध्यापकों ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर स्कूल को क्षेत्र के उत्कृष्ट संस्थानों में शामिल किया है। इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। डियर पेरेंट्स, अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इस सत्र मार्च तक का प्राइज फंक्शन के मार्च तक जो भी हमारी रिपोर्ट हुई थी वो आपको 31 मार्च को बताई गई थी। अप्रैल से लेकर जो अब तक 21 अक्टूबर तक वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मई 2023 ये दिन मेरे लिए बहुत ही यादगार वाला दिन रहा। मालूम तो था हमें फर्स्ट सेम में बच्चे के बहुत ही कम मार्क्स कटे हुए हैं, हो सकता सेकंड सेम में कैसा होगा। होप हमारे को थी कि हमारी मेरिट एक बार फिर से आएगी, फिर जब तक रिजल्ट ना निकले तब तक आप समझते हैं कि हार्ट बीट कैसा चला होता है। तो मैं 10th क्लास में था, +2 क्लास में था। +2 क्लास में पढ़ाते पढ़ाते ही मुझे मुश्किल हो रही थी कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था बच्चों को पढ़ाने में, क्यों 10:30 पौने 11 बजे के आसपास में रिजल्ट डिक्लेयर होना था। तो जैसे ही हमें लगा पता कि रिजल्ट अनाउंस हो चुका है तो हमारे पास लिस्ट नहीं आ रही थी। बच्चों का हर एक टीचर एक एक करके मोबाइल तलाश कर रहा है कि नहीं निकल रहा है सर। तो मैंने जो टॉपर स्टूडेंट है उसके पिताजी को भी पहले बता दिया था कि भाई आज रिजल्ट आने वाला है। तो ये फेसबुक पर ज़्यादा मेरे एक्टिव रहते हैं, तो उन्होंने मुझे एकदम से बता दिया कि भाई बच्चे का नाम मेरिट लिस्ट में लग रहा है कि भाई क्या यही है। तो मैंने मुझे भेजिए आप, तो शायद हो सकता है कोई महेंद्र सिंह और हो, त्रिलोक सिंह और हो, तो मैं रोल नंबर से आइडेंटिफाई कर दूंगा। जैसे ही पता लगा तो उसके बाद तो रिपोर्टर्स का भी आया कॉल काफ़ी कि भाई आपको बधाई हो, वंस अगेन योर स्टूडेंट हैव गॉट द पोजीशन इन द मेरिट। तो ये मेरे लिए एक यादगार दिन रहा है। इससे पहले लास्ट ईयर वो दिन था 29 जून। हर वर्ष रिजल्ट बहुत सराहनीय रह रहा है, मेहनत काफ़ी की जा रही है। इस बार +2 साइंस में हमारे पास टोटल स्टूडेंट थे 20, जिसमें से अबव 23 स्टूडेंट्स, अबव 85 to 89 4%, 4 स्टूडेंट्स, 80 to 84 4 स्टूडेंट,
75 to 79, 2 students. 65 to 74, 5 students. And only 2 students, 60 to 64, they have got the 60 to 64 marks percentage. Only 2 students. Of plus 2 arts में थे total students 22, जिसमें से 90% से अब 2 students है. 80 to 97, above 75% 3 students, and 65 to 74, 11 students, and only 1 student who have achieved the marks 60 to 64% के बीच में only 1 student. इसमें से साइंस में आप सबको हम सुबह से ही बताते जा रहे हैं. महेंद्र 96.8% फर्स्ट पोजीशन, 9th पोजीशन इन HP एंड फर्स्ट पोजीशन इन डिस्ट्रिक्ट कोल्लो. जोरदार बंस अगले पर तालियां होनी चाहिए इस बच्चे के लिए. सेकंड टॉपर पलाश कपूर, सन ऑफ श्री पुनेराम 459, 91.8%. थर्ड पोजीशन मानिया पॉल, डॉटर ऑफ हाकम सिंह, 90.8%. प्लस 2 में टॉपर दमिंदर, ये दूर दराज क्षेत्र से है, पीनी से बच्चे ने टॉप किया है 93.2% आर्ट्स में. सेकेंड रिया, डॉटर ऑफ श्री प्रेमदास, 91.4%. आफ्टर दैट साक्षी थर्ड पोजीशन, डॉटर ऑफ श्री खेम सिंह, 86.4%. अब इनमें से मान्यपाल एंड रिया बच्चे यदि आप आए हैं, आपका नंबर मैंने देखा है कि आपका कल्पना चावला उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना में आ गया है, इसलिए आप कॉलेज में अपना फॉर्म भर लीजिए. उसके बाद मैं आता हूँ क्लास 10th. यहाँ पर डबल खुशी तो नहीं मिली, थोड़ा सा हताश रह गए, जबकि हमें इस लड़की से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी. बट अनफॉर्चुनेटली सरकमस्टांसिस कई प्रकार की आ जाती है जिसके कारण नहीं हो पाता है. क्लास 10th टोटल स्टूडेंट्स 48, पास परसेंटेज 100. इसमें अबव 90% 16 स्टूडेंट. ये एक ग्रेट अचीवमेंट है. 48 में से 33% of the students have achieved the 90% and above. उसके बाद 85 to 89, 9 student, 80 to 84, 4 student, 65 to 74, 5 students, and 60 to 64, only 2 students. ये था हमारा प्लस 2 का 10th का रिजल्ट. काफ़ी अच्छा सराहनीय रहा ये. इसमें से टॉप किया है गुणशिखा, डॉटर ऑफ श्री हरीश चंद्र नेगी, जो आपके सामने आज इनके मम्मी चीफ गेस्ट के रूप में है, 97%. सेकेंड नित्या शर्मा, डॉटर ऑफ श्री मनोहर लाल, 95.85. थर्ड पोजीशन तनीषा ठाकुर, डॉटर ऑफ श्री नरेंद्र सिंह, 95.5%. फोर्थ पोजीशन वंशिका ठाकुर, डॉटर ऑफ श्री शेषराम, 95.28. पीयूष चौहान, सन ऑफ श्री राजू चौहान, 94.71%. सुनैना, डॉटर ऑफ श्री जीवानंद, 94.42%. सिक्स्थ पोजीशन. सेवन्थ पोजीशन दिवांशिका, डॉटर ऑफ श्री तिलकराज, 93.85%. एट्थ पोजीशन रितिका पॉल, डॉटर ऑफ श्री हाकम सिंह, 93.57%. भावना कश्यप, 9th पोजीशन, 93.4%. 10th पोजीशन पंकज, सन ऑफ श्री नौलेराम, 92.71%. 11th पोजीशन दिवांशी जीवनलाल, डॉटर ऑफ श्री जीवनलाल, 92.42%. अनिकेत, सन ऑफ श्री राकेश कुमार, 91.5%. 13th पोजीशन जो 90% से अबव है ये बच्चे, विक्रम नाथ, सन ऑफ श्री नीरत राम, 91.28%.
तन्वी नेगी, डॉटर श्री संजय कुमार नेगी 91.214। अभिषेक नेगी 16th पोजीशन 91.14%। और हमने रखा है कि जो भी बच्चा 90% एंड अबव आता है उसके लिए हम सब प्राइज देते हैं। ये अचीवमेंट है, 90% से अबव आए। हाँ, थोड़ा सा एक है, एक बच्चा 1 मार्क्स, 2 बच्चे 1 मार्क्स रह गए हैं। दे हैव गॉट द 629, वो रियलाइज के लिए है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए रखा कि नहीं उनको प्राइज मिलेगा, नहीं मिलेगा। 630 में 90%, अदरवाइज 1 मार्क्स बिलो नो अवार्ड। इसमें से भी बच्चे यहाँ पर जो भी है सारे, और पेरेंट्स भी ध्यान से सुनिएगा। अभी 1 या 2 दिन पहले ही उत्कृष्ट स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना और उसके बाद TS नेगी वाली स्कॉलरशिप है और अंबेडकर स्कॉलरशिप, ये है उत्कृष्ट जिन बच्चों ने 90% एंड अबव उससे ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं। इसमें से जो लास्ट कट ऑफ गया है वो मैं देख रहा था, उसमें वो है 652 मीन्स 93%। तो इसमें से हमारे बच्चों ने स्कॉलरशिप तो खैर 10 और 11 बच्चों को वही एक ट्रेंड सा बना हुआ है, मिल रही है। इस बार भी वही बच्चे 11 स्टूडेंट जिनको स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना मिलेगी। उसमें है गुणशिखा, नित्या, तनीषा, वंशिका, पीयूष चौहान, सुनैना, दिवांशिका, रितिका पॉल, भावना कश्यप, 9 स्टूडेंट। और इनको मिलेगी स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। एंड आफ्टर दैट TS नेगी छात्रवृत्ति उत्कृष्ट योजना वो मिलेगी सुजल एंड अभिषेक नेगी 91.14%। इन 2 स्टूडेंट्स को TS नेगी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो दुशहरे के बीच में ही अपने डॉक्यूमेंट्स स्कूल में सबमिट करवाने हैं। ये था हमारा 10th और +2 का रिजल्ट। अब चलते हैं हम स्पोर्ट्स की तरफ। स्पोर्ट्स में भी हम हर साल डे बाई डे, जैसे एकेडमिक हमारा चला अच्छा है, उसी तरह से स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा नाम एवरग्रीन स्कूल कमा रहा है। स्पोर्ट्स में सबसे पहले अंडर 14 बॉयज़ वेन्यू था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलियानी, जहाँ पर हमारे अंडर 14 बॉयज़ ने फर्स्ट पोजीशन गेन कर ली और विनर के रूप में ट्रॉफी स्कूल को प्रदान की। उसके बाद 2 स्टूडेंट्स ऋतिक एंड अखिल पटानिया, उन्होंने कुल्लू 2, हम कुल्लू 2 ब्लॉक में आते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन किया। और ये टूर्नामेंट अभी थोड़े दिन पहले ही गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गड़सा में हुए थे और वहाँ पर भी कुल्लू 2 ब्लॉक ने फर्स्ट पोजीशन गेन की। और जो कुल्लू 1 में जो विनर था उसी स्कूल को ही डिस्ट्रिक्ट लेवल की ट्रॉफी भी प्रदान की जाती है। और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप की ट्रॉफी कबड्डी में हमारे स्कूल को ही मिली है। ये एक गौरव की बात है। उसके बाद इनमें से भी एक बच्चा ऋतिक कबड्डी में, और दूसरा एक और स्टूडेंट है अभिनव ठाकुर। इन दोनों का सिलेक्शन स्टेट लेवल के लिए हुआ था। और ये टूर्नामेंट भी अभी 12 से 16 अक्टूबर के बीच में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरोटीवाला सोलन में हुए थे और वहाँ से प्रेजेंट करके आए और सेमीफाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो ग्रेट अचीवमेंट है ये हमारे बच्चों के लिए। और इसी तरह से अंडर 19 कबड्डी, यहाँ भी बच्चों का इस बार फर्स्ट टाइम दबदबा रहा। और अंडर 19 हम नगर ब्लॉक में आते हैं। नगर ब्लॉक में हमारे बच्चों ने कबड्डी में भी फर्स्ट पोजीशन गेन कर ली, जिसमें से कुछ बच्चे आगे स्टेट के लिए, नेशनल के डिस्ट्रिक्ट के लिए सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद एथलेटिक्स, इस बार हम एथलेटिक्स में भी गए थे। देखते हैं कि एथलेटिक्स में क्या होता है जब हमारे पास बच्चे रफ एंड टफ है। और देख ही सकते हैं आप, हमारे बच्चे रफ एंड टफ ही है। सारे बच्चे यहाँ पर नीचे बैठे हुए हैं, पूरे प्रॉपर डिसिप्लिन में है। जब बच्चा रफ एंड टफ होगा तभी उसमें और डेवलपमेंट होगा। यदि कोई पेरेंट्स ये बोले कि नहीं मेरा बच्चा यहाँ पर गंदा हो रहा है, ये कुछ है, यदि हम इसी तरह की भावना अभी बच्चों में क्रिएट करेंगे तो ऑल राउंड डेवलपमेंट मैं सोचता हूँ कि नहीं हो पाएगा।
एथलेटिक्स में भी ये होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन, जिसमें सूर्यांश इन द डिस्कस थ्रो won the gold medal and selected for the state level athletics competition जो आपका अभी हमीरपुर में होने जा रहा है। योगेश ब्रॉन्ज मेडल इन डिस्कस। उसके बाद पीयूष ठाकुर जेवलिन में गोल्ड मेडल, ये बच्चा अभी सिलेक्ट हो गया है स्टेट के लिए। साई राणा शॉट पुट, ये बच्चा भी आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू को रिप्रेजेंट करेगा और ये नवंबर में आई थिंक टूर्नामेंट होंगे तो वहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद 4x100 मीटर रिले रेस, राजीव, ईशान, वैभव एंड हिमांशु वन द ब्रॉन्ज मेडल। इस बच्चे ने ब्रॉन्ज मेडल, इन बच्चों ने रिले रेस में 4x100 मीटर में रिले रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब चलता हूँ मैं अंडर 14 जूडो। जूडो कई सालों से एवरग्रीन एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में गढ़ रहा है और स्टेट लेवल से भी हमारे काफ़ी मेडल आ चुके हैं और नेशनल लेवल पर भी कई बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और नेशनल में भी मेडल आ चुके हैं। अंडर 14 टोटल वेट थे 7, उसमें से 4 गोल्ड मेडल। और इन बच्चों का टूर्नामेंट अभी पहले था चंबा में, अब ये कैंसिल हो गया और ये होगा बिलासपुर में। सक्षम सन ऑफ श्री झावेराम गोल्ड मेडल इन 50 किलोग्राम कैटेगरी। ऋतिक सन ऑफ श्री ताराचंद गोल्ड मेडल इन जूडो -55 kg। समर 35 वेट कैटेगरी में सन ऑफ श्री बोधराज गोल्ड मेडल। -25 वेट कैटेगरी में काव्या सन ऑफ श्री सुरेश कुमार। और ये 4 बच्चे जाएंगे अभी नवंबर में जूडो खेलने, डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे और ये जाएंगे आपके बिलासपुर। अंडर 19 रेसलिंग, आज ही बच्चे रेसलिंग में भी हमने हाथ जमाया था, जब जूडो आती है तो रेसलिंग में क्यों नहीं। तो रेसलिंग में भी काफ़ी टिप्स खाए थे। एक नया टीचर ही समझो या मेरा अपना बेटा जो 11 बार नेशनल जूडो में खेल चुका है और वो अब मेरी जगह मेरा साथ देने के लिए स्कूल में है। तो थोड़े दिनों से वो 10-15 दिनों से यहीं पर थे, तो मैंने कहा क्यों ना रेसलिंग की तरफ ही ध्यान दिया जाए। इंडिविजुअल गेम है, इंडिविजुअल गेम में यदि बच्चा अच्छा कर पाता है तो उसका कैरियर बन जाएगा। तो रेसलिंग में भी 7 इवेंट थे टोटल, 7 में से 7 स्टूडेंट्स हैव वन द गोल्ड मेडल इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और इनमें से फर्स्ट टाइम ये बच्चे गए थे, इसमें से 2 बच्चे जूडो में तो रेसलिंग में तो नहीं गए चंबा, और ये आज सुबह ही पहुंचे हुए हैं चंबा से खेलकर, जिसमें ईशान, विवेक एंड दीपक। तो इन्होंने स्टेट लेवल पर इस बार रिप्रेजेंट किया था डिस्ट्रिक्ट कुल्लू को और ये टूर्नामेंट चंबा में हुए थे। अब चलता है एक नई गेम कुराश, ये भी जूडो की तरह है। फर्स्ट टाइम हमारे हिमाचल में बोलो चाहे डिस्ट्रिक्ट में आ चुकी है। इससे पहले 4-5 साल पहले मैंने काफ़ी नाम सुना था इसका, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स में खुद भी इंटरेस्ट है। तो कुराश के बारे में, ये जूडो की तरह एक गेम होती है। इसमें भी जब हमारे बच्चे चले गए यहाँ से 10 स्टूडेंट थे, तो सब बच्चों के मेडल्स आए हैं। आकाश गोल्ड मेडल इन कुराश, जतिन ठाकुर सिल्वर मेडल, लेनिश गोल्ड मेडल, सूर्या बंगालिया सिल्वर मेडल, सूर्यांश गोल्ड मेडल, हिमांशु ब्रॉन्ज मेडल, सक्षम ब्रॉन्ज मेडल, विवेक ब्रॉन्ज मेडल, शिवेन ब्रॉन्ज मेडल एंड दीपक सिल्वर मेडल। इनमें से सबसे अच्छा जो परफॉर्म किया ये बच्चा था सूर्यांश, और ये बच्चा इस टाइम नहीं है, और ये बच्चा गया है नेशनल कुराश खेलने के लिए यूपी सहारनपुर। 19 अक्टूबर को चला गया है, और यही बच्चा हमारा बेस्ट ऑफ प्लेयर के अवार्ड से भी इस बार नवाजा जाएगा। अब रहा मेरे पास लास्ट, ज़्यादा टाइम नहीं मिलूंगा, अंडर 19 जूडो। तो मैंने जूडो में पहले बोला
ओवरऑल विनर इन द अंडर 14 विनर की ट्रॉफी हमें मिली है, और विनर की ही ट्रॉफी अंडर 19 भी हमें आई है। -40 किलोग्राम कैटेगरी गोल्ड मेडल आकाश, 45 किलोग्राम वेट कैटेगरी में साजन सिल्वर मेडल, और इस बच्चे ने इस बार बॉक्सिंग में भी अपना नाम कमाया है, सिल्वर मेडल इन बॉक्सिंग। 50 किलोग्राम वेट के कैटेगरी सूर्य बंगालिया गोल्ड मेडल, 55 में योगेश गोल्ड मेडल, 60 किलोग्राम कैटेगरी में तुषार गोल्ड मेडल, 73 वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल। यह है आपका सूर्यांश, जो बच्चा अभी कुराश के लिए भी चला गया है। तो टोटल वेट 9 वेट थे, उसमें से 7 गोल्ड मेडल हमारे स्कूल के लिए है। तो मुझे लग रहा है कि डे बाय डे आवर स्कूल इज़ प्रोग्रेसिंग। चाहे आप एजुकेशन के उस एकेडमिक में लो, चाहे स्पोर्ट्स में भी हम अपनी तरफ से 101% देने का पूरा एफर्ट कर रहे हैं। अब मंथ में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए 2 पंक्तियाँ कहता हूँ। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक़्त और हालात पर रोया नहीं करते। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ। Once again, thanks a lot.